पड़ा है, ठीक है। In the next session of the PC hardware, the topics are von Neumann model. Then there will be introduction to von Neumann model, then the PC system components, then the necessary concepts we are going to cover in this topic. Then von Neumann model. वन न्यूमन मॉडल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वन न्यूमन मॉडल ऐसा एक मॉडल है जो कि हम लोग जो है स्टार्टिंग से अभी तक यूज़ करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने वन न्यूमन ने क्या कर रखा है, वन न्यूमन डिवाइडेड ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर इनटू 5 प्राइमरी ग्रुप्स. Like first one is CPU, then there is input, then next is output, then there is working storage, then there is a permanent storage. In the CPU we can say we are using processors of different categories like dual core processor, core to dual processor, i3 processor, i5. Then in the input we are using keyboard, mouse, etc. Then in the output we are using monitor, etc. Then for working storage we are using for temporary storage we are using RAM. Then for permanent storage we are using hard disk. Then the von Neumann model in the year 2004. As we can see in the figure, there are different type of buses. Like in the input section we are using keyboard, mouse, scanners, digital cameras. Then in the output section we are using screens like monitors, then printers, etc. Then there is input output units, like we are using modem, ISDN, sound card. Then there is a MIDI format when we are using the sound cards, etc. Then we use video features, like for video features we are using TV cards like graphic cards or TV tuner cards, etc. Then for the working storage there is a SD RAM, DDR RAM, RAM bus. Means there are different types of RAM is available, like in Windows in Pentium 3 computers we were using, even we are still using SD RAM, and in Pentium 4 technology we are using DDR RAM, like DDR1, 2, 3. These are the different types of DDR RAM. Then for permanent storage we are using hard disk, CD-ROM, etc. other drive types. हार्ड डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, इवन की CD रोम्स हम लोग यूज़ करते हैं अगर इनकेस हम लोगों को डाटा की बैकअप ले करके रखना होता है, देन हम लोग CD रोम वगैरह CDs यूज़ करते हैं. देन देर आर सम नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट वन द कॉन्सेप्ट इज बाइनरी डाटा. देन इन द एक्सप्लेनेशन देर विल बी इट्स ए डाटा, बी इट इंस्ट्रक्शंस, यूज़र डाटा और समथिंग एल्स which has been translated into sequences of 0 और 1. मीन्स जो बाइनरी डाटा जो है हमारा एग्जीक्यूटेबल डाटा है उसके रिगार्डिंग ये बता रहा है. देन नेक्स्ट इज बस विड्थ, द साइज ऑफ द पैकेट ऑफ डाटा विच इज प्रोसेस्ड, फॉर एग्जाम्पल मूव्ड इन ईच वर्क साइकिल. दिस कैन बी 8, 16, 32, 64, 128 और 256 bits. Means these are in the category of the bits format. Then there is a bandwidth, the data transfer capacity. This is measured in, for example, kilobits per second or megabytes per second. Bandwidth like कितनी स्पीड से ये वर्क कर रहा है, जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है. Then there is a cache, the temporary storage, a buffer. कैशे होता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए. Then next is chipset, a controller of one or more controllers. Many of the motherboard's controllers are gathered together into a chipset which is normally made up of a north bridge and a south bridge. जो हमारा चिपसेट होता है मदरबोर्ड के अंदर, इसको मदरबोर्ड को हम लोग जो है दो ब्रिजेस में डिवाइड करते हैं. एक तो हमारा नॉर्थ ब्रिज आ जाता है, दूसरा हमारा साउथ ब्रिज आ जाता है. देन देयर आर कंट्रोलर्स, a circuit which controls one or more hardware components. The controller is often part of the interface. ये एक सर्किट है जो कि कंट्रोल करता है जितने भी हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं
जो कि एज एन इंटरफेस वर्क करते हैं. देन नेक्स्ट इज हब्स. दिस एक्सप्रेशन इज ऑफन यूज्ड इन रिलेशन टू chipset design where the two north and south bridge controllers are called hubs in modern design. Then next is interface, a system which can transfer data from one component or subsystem to another. एक इंटरफेस क्या है? एक सिस्टम है जिसके थ्रू डाटा जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र होता है. An interface connects two components, for example a hard disk and a motherboard. Then interfaces are responsible for the exchange of data between two components. At the physical level they consist of both software and hardware elements. जो फिजिकल लेवल पे हैं ये किससे कंसिस्ट कर रहा है, किससे कंसर्न्ड है? ये दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एलिमेंट से कंसर्न्ड हो रहा है. The next is I/O units. Components like mice, keyboards, serial and parallel ports, screens, network and other cards along with USB, firewire and SCSI controllers etc. I/O units इनपुट आउटपुट के यूनिट्स जिसके थ्रू इनपुट भी होगी देन हमारे पास में आउटपुट भी आएगी. देन ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, देन सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स यूज़ करते हैं जो कि सीपीयू की बैक साइड में होते हैं. देन हम लोग जो हैं नेटवर्क कार्ड्स यूज़ करते हैं, इवन कि यूएसबी के हम लोग पोर्ट्स यूज़ करते हैं. देन स्कैजी कंट्रोलर्स हम लोग जो हैं यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट टर्म इज क्लॉक फ्रीक्वेंसी, द रेट एट विच डाटा इज़ ट्रांसफर्ड. वो रेट जिस पे जो है हमारा डाटा की ट्रांसमिशन होती है, जिस स्पीड से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, विच वेरीज क्वाइट ए लॉट बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द पीसी, जो कि वेरी करता है कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्पीड के अकॉर्डिंगली. देन यूजली मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़. ये जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है यूजली जो है मेगाहर्ट्ज़ के फॉर्मेट में मेजर होती है. देन क्लॉक टिक और क्लॉक साइकिल. A single clock tick is the smallest measure in the working cycle. एक जो सिंगल क्लॉक टिक होता है वो हम लोग जो है एक ये बहुत ही छोटा सा होता है. Then a working cycle, for example, the transport of a portion of data can be executed over a period of about 5 clock ticks. It costs 5 clock cycles. ये जो हम लोगों को कोस्ट पड़ती है इसकी कितनी क्या फ्रीक्वेंसी जो है वर्क कर रहा है, ये 5 क्लॉक साइकिल्स के अकॉर्डिंगली होता है. द नेक्स्ट इज लॉजिक, एन एक्सप्रेशन आई यूज टू रेफर टू सॉफ्टवेयर बिल्ट इनटू चिप्स एंड कंट्रोलर्स. फॉर एग्जांपल एन EIDE कंट्रोलर हैज़ इट्स ओन लॉजिक एंड द मदरबोर्ड्स बायस इज लॉजिक. लाइक यहाँ पे इसने जो बहुत अच्छी एग्जांपल दे रखी है मदरबोर्ड के बायस की. बायस का क्या काम होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है. देन मेगाहर्ट्ज़, अ स्पीड विच इज़ यूज टू इंडिकेट क्लॉक फ्रीक्वेंसी. मेगाहर्ट्ज़ हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ये टर्म यूज़ होती है स्पीड के लिए, सो दैट कि हम लोग जो है स्पीड को मेजर कर सकें कि कितनी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ये वर्क कर रहा है. इट रियली मीन्स मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड. The more megahertz, the more data operations can be performed per second. जितनी मेगाहर्ट्ज़ की ज़्यादा स्पीड होगी उतनी स्पीड पे ही हमारे डाटा के ऑपरेशंस होंगे. Then next is North Bridge, a chip on the motherboard which serves as a controller for the data traffic. जो कि हमारे कंट्रोलर्स ए चिप ऑन द मदरबोर्ड, ये जो है मदरबोर्ड के ऊपर चिप होती है which serves as a controller for the data traffic close to the CPU. जो भी CPU के आसपास जो हमारा प्रोसेसर है उसके आसपास जो हमारा डाटा की ट्रांसमिशन होती है उसको ये कंट्रोल करता है. Then it interfaces with the CPU through the front side bus. इसका इंटरफेस कौन सा होता है? FSB होता है. And with the memory through the memory bus. ये क्या करता है? इंटरफेसेस में इसके क्या क्या इंक्लूडेड है? FSB आ गया, फिर मेमोरी हम लोग जो हैं यूज़ करते हैं जो कि मेमोरी बस के थ्रू होती है. द नेक्स्ट आ गया प्रोटोकॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक रूल्स विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ डाटा
between two components or system. इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक रूल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अभी हम लोग जो प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक रूल्स हैं, जो कि विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, जो कि रेगुलेट करते हैं डाटा का फ्लो का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से पहले से कंप्यूटर, पहले से तीसरे कंप्यूटर्स में। देन प्रोटोकॉल्स फॉर्म पार्ट ऑफ इंटरफेसेस, जो प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉर्म क्या करते हैं, इंटरफेसेस की टाइप से वर्क करते हैं। अगर इनकेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो मेनली जो है प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होती है। देन नेक्स्ट इज साउथ ब्रिज, ए चिप ऑन द मदरबोर्ड विच वर्क्स टुगेदर विद द नॉर्थ ब्रिज। साउथ ब्रिज क्या है, ये भी एक चिप होती है मदरबोर्ड पे जो कि वर्क करती है टुगेदर विद द नॉर्थ ब्रिज। जैसे हम लोगों ने अभी जो है नॉर्थ ब्रिज का डिस्कस किया है, ये नॉर्थ ब्रिज के साथ में ही काम करते हैं। मीन्स एक मदरबोर्ड पे साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज दो ब्रिजेस होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन नॉर्थ ब्रिज जो है इट लुक्स आफ्टर द डाटा ट्रैफिक विच इज़ रिमोट फ्रॉम द सीपीयू। साउथ ब्रिज क्या करता है, ये पूरे के पूरे डाटा की केयर करेगा, द डाटा ट्रैफिक विच इज़ रिमोट फ्रॉम द सीपीयू, जो कि हमारे प्रोसेसर से जो है थोड़ा दूर होता है। Then so this is all for the today's session. So there is assignments like what is one Neumann architecture, what comes in the one Neumann architecture, जो हम लोगों ने अभी वन न्यूमन आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। वन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है और वन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है। मिनट चलेगा।